इंसान और पौधों में क्या समानताएं हैं। आखिर इंसान जो है पौधों को जो नष्ट कर रहा है, क्या वो अपना अस्तित्व को नष्ट कर रहा है? इसी बात पे हम एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि हमारे और पौधों में क्या अंतर है। कुछ 5 सिद्धांत है जिस पे इंसान और पौधे काम कर रहे हैं। इन्हीं सिद्धांतों का हम चर्चा करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको समझना आसान हो जाए और जान सको कि पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे उनका जो है पूरे शरीर के जो है वर्णन किया गया और किसका क्या कार्य है। ये जान के आप हैरान हो जाओगे कि सारे कुछ जो है इंसानों जैसे ही उनके मिलते जुलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इंग्लिश में। द फर्स्ट इज cellular level of organizations. Friend, cellular level of organizations mean the organizations of the activities by the different organs in the single cell. Example, white blood cells are a green cells of a leaf. There is a white blood cell in human and plants is the green cells of a leaf. There is a cellular level of organization. And second is tissue level organization. What do you mean to tissue level organization? They are aggregate of the cell of same origin and having same functions. Example, the surface epitheliums of our skin are the dividing cells at the root cap of a plant. Friend, the human body is the surface of epitheliums of our skin and plant is the roots caps of plant. There is a tissue level organizations. And third is a tissue system organizations, are generally seen in a plants where two or more different cell types combine to perform a particular activity. So example, the vascular tissue is the veins and the leaves as a consisting of xylem and phloem for transfer of water and food materials. Friend, there is a human body is a veins of a and the leaves of their is a xylem and phloem to water and food transfer for the materials of different part of plant. So this is the organization. And fourth is a organs level organizations. Organ levels organization mean the distracted or recognizable part of body composed of a variety of tissue and the performing one or more special functions which contribute to the well-being of organism. Example, liver in animals and the leaf in a plants. Friend, the liver in animals there is the release of enzymes, and the leaf in a plant there is the making of food for a plant. The next is organ system. Friend, what do you mean to the organ system? Here, combination of a set of organs, all of which are the usually developed to one general function. Example, respiratory system. The respiratory system consists of lungs, tracheas and diaphragm in a man or another is a short system consisting of leaves, stem and branches in a plant. Friend, here respiratory system in a human body they are used for the lungs, tracheas and diaphragm. And the other side is in plant there is a use of respiratory system or leaves, stem and branches. There is a organ system organization in a both plant and animal. अब यहाँ पर देखने योग्य बात ये है कि जो संगठन है किसका काम क्या है। तो चलिए हम देखते हैं किसका कार्य क्या है। सबसे पहले तो यही आता है कि संगठन का कोशिकीय स्तर। संगठन का दोस्तों कोशिकीय स्तर एक अकेली कोशिका के भीतर विभिन्न अंगों द्वारा क्रियाओं को संगठन है। उदाहरण श्वेत रुधिर कोशिका अथवा पत्ती की हरी कोशिका। देखिए श्वेत रुधिर कोशिका जो होती है हमारे शरीर में होने वाली हर एक बीमारी के लिए वो फाइट करती है, ठीक है, और जो है भोजन को जो है डिफरेंट जो है पार्टों को तक करती है। उसमें जो है पत्ती की हरी कोशिकाएं जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। ह्यूमन में अगर कहो तो श्वेत रुधिर कोशिका यानी
VC करता है, और जहाँ प्लांट आता है उसमें जो है आपको पता ही होगा पत्ती की हरी कोशिकाएं जो है कार्यशील होता है, क्योंकि ये कोशिका सतर कहलाता है। उसके बाद ऊतक सतर में क्या होता है, सामान्य उद्भव और सामान्य कार्य वाली कोशिकाओं का पाया जाना। उदाहरण हमारी त्वचा का सही एपिथेलियम। देखिए हमारे त्वचा का जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे पौधे के जो है मूल गोप यानी रूट कैप पर पाई जाने वाली विभाजनकारी कोशिकाएं, ठीक है, जो आप देखोगे रूट कैप पे जो विभाजनकारी कार्य होता है वो सेम एपिथेलियम की तरह ही कार्य करता है। यानी दोनों का कार्य जो होता है हमारे शरीर में जो है एपिथेलियम टिश्यू जो सतर होती है वो उस पर कार्य करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ऊतक तंत्र। देखिए ऊतक तंत्र क्या होता है, कहते हैं आमतौर से पौधों में देखने को मिलता है जहां कोशिकाओं के दो या अधिक प्रकार मिलकर एक किसी विशिष्ट प्रकार को संपन्न करती है, जैसे पत्ती का संवहनी ऊतक सिराएं आदि, जो जल तथा खाद्य पदार्थ को परिवहन के लिए एंजाइम एवं फ्लोएम का बना होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जैसे आप देखते हो कि जो पौधे होते हैं उसमें जल तथा जो खाद्य पदार्थ को जो है ले जाने के कार्य कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है, ठीक है। तो संवाहनी ऊतक सिराएं जो होती है इंसानों के शरीर में ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। तो कहते हैं सबका अपना कार्य। आपको पता है कि ब्लड जो होती है, ब्लड में जो है सारे ऑक्सीजन मिले होती है, विभिन्न विभिन्न बॉडी के पार्टों में जाके जो है शरीरों को एक सुचारू रूप कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। जिस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं खाना लाने ले जाने के सबके कार्य दोनों के दोनों मिलके करते हैं। उसके बाद है अंग सतह। देखिए शरीर का एक सुस्पष्ट अविक्षय पहचान योग्य भागों को विविध ऊतकों का बना होता है और ऐसे एक या अधिक कार्य संपन्न भी करता है, जो जीव की कल्याण के लिए अपना योगदान भी देता है। उदाहरण प्राणी का यकृत और पौधे की पत्तियां। देखिए यकृत का काम क्या होता है, हर तरह के एंजाइम करना देना और उससे जो है खाना पचता है, और खाना पचेगा तो एनर्जी हमें मिलेगा। पौधे की जो पत्तियां होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन बनाती है और पौधों को डिफरेंट जो है भागों तक पहुंचती है। तो देखिए जहां हमारे लिए प्राणियों में युक्ति है वहीं भी जो यानी यकृत का लीवर्स कह सकते हो इंग्लिश में, यकृत होता है प्राणी यानी लीवर होता है इंसानों में, और पौधे के लिए जो है पत्ती यानी लीफ जो होता है इसके कार्य करता है। तो दोनों का कार्य एक जैसा ही है, ठीक है, सिर्फ हमारा ये प्राणी में आ जाता है वो पौधे में आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अंग तंत्र। देखिए अंग तंत्र क्या होता है, अंगों के एक समुच्चय का एक ऐसा समूह जो सभी मिलकर आम तौर से एक सामान्य कार्य संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मानव में जो है श्वसन तंत्र। देखिए सांस लेने में सिर्फ हमारा फेफड़े का ही काम नहीं होता है, उस श्वास में जो है फेफड़े यानी फुफ्फुस का काम आता है, श्वसन नली का काम आता है, मध्य पटल यानी डायाफ्राम इत्यादि का बना होता है। तो सारे चीज़ों को जो होता है अपना एक योगदान देता है। जैसे पौधों में अगर देखोगे तो पौधा स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, पौधे का प्रबोध तंत्र जो होता है जिसमें पत्तियां, स्तंभ, शाखाएं आदि सारे सम्मिलित होते हैं, सारे के सारे मिल के जो है पौधे के लिए भोजन तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, जिसमें कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। सेम ऐसे ही मानव श्वसन तंत्र में भी होता है। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है और वहाँ जब ब्लड रहती है उनको जो है वो ऑक्सीजन मिला के जो है हृदय तक भेजती है। तो दोनों का कार्य जो होता है कहीं हद तक एक जैसा ही होता है, इसलिए जो है मानव और जो पेड़ पौधे जो है जीवित प्राणी में आते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जीवित होते हैं। अगर इसको आप गहराई से समझोगे ना तो कहते हैं पौधा भी हमारे जैसे ही होते हैं, क्योंकि जो परमात्मा ने दोनों की रचना किया है इंसानों का और पौधों का काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, सारा मैक्सिमम चीज़ सोच लो मिलता जुलता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज रहती है। तो कहते हैं कि इन चीज़ों को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो है सच्ची में ज़िंदगी होती है और वो भी तड़पती है। जब आप उसको नष्ट करते हो, काट देते हो, तो आप शायद आपको समझ नहीं होगी कि उसको भी शायद दर्द होता होगा, ठीक है, क्योंकि जब वो सांस ले सकती है, अपने सारी क्रियाएं मनुष्य की जैसा ही करती है, तो जब उसको काटा जाता होगा या वो टूटती होगी तो कितना दर्द होता होगा, शायद इंसान इस बात को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि एक साइंटिस्ट ने भी इस पर रिसर्च किया था कि जैसे उन्होंने जहर दिया था और उन्होंने देखा था कि पौधों में एक जहर डाला था तो जैसे पौधे इंसान तड़पते हैं वैसे पौधे भी तड़प रहे थे जब उन्होंने एनालाइज किया। तो ठीक है, ये है छोटे क्लास में कहीं देखना मिल जाएगा आपको, चैप्टर में हिंदी के चैप्टर में था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने साइंटिस्ट ने खोज किया था।
और मेरा भी यही विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना हमारे अंदर दर्द है उतना पेड़ पौधों के अंदर भी दर्द है। हम जितना पोल्यूशन फैलाते हैं वो गुस्सा हम पे करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा वो कैसे करेंगे उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुदरत सभी के साथ है, और कुछ आप लोगों के साथ ऐसा विनाशकारी लीला रची जाती है जो आप जो है खुद भी नहीं समझ पाते हो कि ये लीला क्यों रची गई है। तो जो है कुछ प्राकृतिक ने हमें संकेत दिया है। अब देखिए, एक कोरोना वायरस भी था, इसी बेस पे था। कहते हैं कि हम पौधे को जो है पृथ्वी का लंग्स कहलाती थी ना, कि पृथ्वी का जो लंग्स होता है पेड़ पौधे हैं, और हमारे जो है कोरोना वायरस कहाँ पर अटैक किया, लंग्स पे। तो इसका मतलब है कि कुदरत हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, और शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग समझ जाते तो शायद हमारी दुर्दशा ऐसी नहीं होती। और आपको क्या लगता है, आने वाला समय में इससे भी भयंकर घटनाएं घटने वाली है, जिसको शायद किसी को भी ज्ञात नहीं है, और ऐसी घटना घटेगी जिसका कोई भी ना तो इलाज होगा ना कोई सलूशन होगा। ठीक है, फिर जाके हम जो होंगे पुराने पद्धति को ही अपनाएंगे। चलिए, ये कहते हैं, इसलिए मैंने बोला क्योंकि कहते हैं हमारा शरीर और पेड़ पौधा काफ़ी मिलता जुलता ही यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है।